students, this is Pranjal Tripathi standing in front of you, wishing you all a very good morning. In the previous video, I have taught you about this chapter 3. The name of the chapter 3 is gravitation. Basically, I have taught you about some topics in this chapter, that is gravitation, the introduction of the chapter and some definitions and some laws. The last topic was the significance of universal law of gravitation, Kepler's law of planetary motion. In that video, in the previous video, I have taught you about the Kepler's law of planetary motion. There some things to our left. A student have asked me that, sir, in the Kepler's law of second Kepler's law of planetary motion, what is the shape of ellipse? So let's start our video from the discussion that is on the shape of ellipse. The second law indicates that or says that all the planets revolve around the sun in elliptical orbits. The question arises that what is elliptical orbit? What is the shape of ellipse? I have told in the previous video also, but today let's start a fresh discussion on this topic. This shape is known as ellipse, like oval shape. It has two axes. The axis which is bigger in shape or bigger in length, this is known as major axis. And the length or the axis whose length is small, this is called as minor axis. And this ellipse has two focus points. One focus is this, another focus is this. Focus 2, focus 1. The second law says that, second law क्या कहता है कि all the planets revolve around the sun in elliptical orbits, keeping sun at one of its focus. Means sun may be here, focus 1. This point is focus 1, तो sun यहाँ पर रह सकता है. And all the planets revolve around this sun in elliptical orbit, means in the same orbit, like this. So planet at some time planet may be here, at other time planet may be here, after some time planet may be here. So it moves or revolves around the sun like this. The orbit, the shape of the orbit is like ellipse. And then this planet comes to here, this point. See, this point is closest to the sun. This point is closest to the sun. So this point is known as perihelion. Peri, this word is consisted of two words, that is peri and helion. Helion is derived from the word helios. Helios means sun. Peri means close. This is peri plus helios. Peri means close and helios means sun. The point which is closest to the sun is known as perihelion, while
This point is the farthest from the sun. This is known as aphelion. I hope you all have understood now what is ellipse, what are the two focus points, where the sun is located, and how planets revolve around the sun. Before Kepler gave his planetary laws, everyone assumed that the planet revolved around the sun in circular orbit. But then Kepler did his research and said, no, the planet don't revolve around the sun in circular orbit, they revolve around the sun in elliptical orbit. Ellipse is not the circle, ellipse is just an elongated circle. जब सर्कल को ये सर्कल इसको elongated मतलब खींच दिया दोनों तरफ से, इधर से भी खींच दिया इधर से भी खींच दिया, तो ये कुछ ये शेप बन गई. This is called ellipse. Students, let us now discuss the third law of Kepler's planetary motion. In the previous video, I have taught that third law of Kepler's planetary motion says that the time period, the square of time period in which planet revolves around the sun is directly proportional to the radius of the orbit of that planet. What I mean to say is, this is sun. This is its elliptical orbit. Like this. And the planet is revolving on this orbit. So, T is the time period. T is the time period that is required by this planet to revolve around the sun, that is in one revolution. Time period required for one revolution around the sun is T. And R is what? R is the not the radius, it is average radius. Average radius. Ellipse की जब हम बात करते हैं तो हमेशा रेडियस की जगह एवरेज रेडियस लेते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें सर्कल तो है नहीं जो केवल एक रेडियस होगी, इसमें दो रेडियस होती हैं. जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें दो रेडियस होती हैं, या रेडियस उसको नहीं कह सकते, उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस. मेजर एक्सिस, तो जब इसकी रेडियस हमें चाहिए होती है एवरेज रेडियस, तो करते हैं मेजर एक्सिस प्लस माइनर एक्सिस अपॉन 2. एवरेज निकाल लेते हैं तो इससे हमको रेडियस मिल जाती है. तो ये रेडियस एक्चुअली हम लोग बोल देते हैं कि इस ऑर्बिट की रेडियस है, जबकि रेडियस हमेशा सर्कल की होती है. In case of ellipse, here in case of ellipse, this R is equal to major axis plus minor axis divided by 2. That is the average of major axis and minor axis. So coming to our topic, that was Kepler's third law. It indicates that a square of time period in which planet revolves around the sun, in which it completes one revolution around the sun, is directly proportional to the cube of radius, or we can say average radius of the orbit of planet. एवरेज रेडियस किसकी होगी? इस प्लैनेट के ऑर्बिट की.
अब कुछ बच्चे होंगे उनको ये नहीं पता होगा व्हाट इज ऑर्बिट. ऑर्बिट इज द वर्चुअल पाथ. ऐसी कोई लाइन रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है स्पेस में, ये एक वर्चुअल पाथ है. प्लैनेट जो है इस फॉर्म में मोशन करता है, इस क्या कह सकते हैं, इस पाथ पर मोशन करता है. पहले यहां पर है, फिर यहां पर आ जाएगा, फिर यहां पर, ऐसे ऐसे करके इसका मोशन होता है लाइक दिस. तो इन सब इमेजिनरी पॉइंट्स को जोड़ते हुए ये इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्बिट. तो आपको ये पता हो गया t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. एंड जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहां पर लगा है, अगर ये r क्यूब इसके अपॉन में जाते हैं t स्क्वायर, that is directly proportional to any constant. Let us suppose there are two planets that are revolving around the sun in the elliptical orbit. Means जैसे कि एक planet ये है, वैसा ही कोई दूसरा planet भी होगा जो कि revolve कर रहा होगा sun के around elliptical orbit में. So let us suppose the time period that is required by the planet 1 to complete one revolution around the sun is t1. Means for first planet, let us suppose time period is t1 and its radius is r1. The radius of first planet is equal to r1. ये केस किसके लिए था? फर्स्ट प्लैनेट के लिए. अब ऐसे ही कोई दूसरा प्लैनेट भी होगा जिसकी भी ऑर्बिट लगभग कुछ ऐसी होगी. प्लैनेट 1, दिस इज प्लैनेट 1, दिस इज प्लैनेट 2. दो प्लैनेट हो गए, दोनों ही इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड. और दोनों, अब इसके फर्स्ट केस में, फर्स्ट प्लैनेट के केस में टाइम पीरियड हमने t1 माना, रेडियस r1 माना. वैसे ही सेकंड फॉर सेकंड प्लैनेट टाइम पीरियड in completing one revolution around the sun is equal to t2. Same radius second planet के लिए हो गई r2. अब थर्ड लॉ जो था हमारा, वो क्या कह रहा था? t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. मैथमेटिक्स में हमने एक चीज पढ़ी होगी कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाते हैं या जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड करते हैं. तो जैसे ही t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब था, जब यहां से ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, इक्वल टू लगाया, तो इसके साथ कोई कांस्टेंट आ गया k. अब t स्क्वायर अपॉन r क्यूब, ये r क्यूब अपॉन में ले आए, इज इक्वल टू k, that is constant. This is the result of Kepler's third law of planetary motion. अब there are two cases, that is there are two planets. Then let us suppose for first case it is t1 square upon r1 square is equal to constant k. In second case it is t2 square upon r2 square, that is equal to constant k. Let us suppose this is equation 1 and this is equation 2. Now we can see here
equations, equation 1 and equation 2. Equalizing these equations, we get T1 upon R1 square is equal to T2 upon R2 square is equal to constant K. K is what? K is constant. देखिए पहले में भी रेशियो T1 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर किसके बराबर था? कांस्टेंट K के। दूसरी इक्वेशन में भी T2 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर किसके बराबर था? कांस्टेंट K के। तो ये दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर दिया? इक्वलाइज कर दिया। इक्वलाइजिंग बोथ इक्वेशंस वी गेट T1 अपॉन R1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू K, T2 upon R2 square is equal to K. This is the outcome of third law of Kepler's planetary motion. Now one thing more. Before Kepler, there were few scientists who were studying or doing scientific research on the motion of the planets. Kepler was a very good scientist, but he could not give any theory about the motion of the planet, the reason why planets move around the sun. This reason was given by Newton, the great scientist Newton. We can say Newton gave us the reason why planets move around the sun. What is the reason behind the motion of the planets? That reason was given by Newton. Students, coming on our next topic, that is Newton's inverse square rule. Newton's inverse square rule. While I was telling you about Newton's law of gravitation, I told you that the force of gravitation is inversely proportional to the square of the distance between two bodies. That is, F is inversely proportional to the square of the distance between two bodies. That was R. So, before giving his theory, Newton assumed that the orbit of the planets that are revolving around the sun is circular. जो ऑर्बिट है प्लैनेट्स की जिसमें कि वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, उसको इन्होंने न्यूटन ने सर्कुलर माना और अपनी थ्योरी दी दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स और द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्लैनेट्स टू मूव अराउंड द सन, which we know as centripetal force, that force is given to the planets by the force of attraction between sun and the planet, or we can say by the gravitational force between the sun and the planet. I mean to say कि जो फोर्स है जो कि रिक्वायर करेगा उस प्लैनेट को, जो फोर्स चाहिए उस प्लैनेट को मोशन करने के लिए, वो फोर्स कहाँ से मिलता है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसे मिलता है वो कहाँ से मिलता है? By the gravitational force between sun and the planet. ये थ्योरी दी थी न्यूटन ने। तो जो उन्होंने क्या कहा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है F, that is equal to mv square upon r. mv square upon r. This is the formula for centripetal force. In this formula, m is the mass of the planet, v is the orbital velocity, and r is the radius of the orbit on which the planet is revolving around the sun. m क्या है? मास है किसका? प्लैनेट का। v क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब कि उस ऑर्बिट पर प्लैनेट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। r is what? r is the radius of the orbit. रेडियस क्यों? Because Newton considered the orbit of the planets as circular. न्यूटन ने अपनी इस थ्योरी में प्लैनेट्स के ऑर्बिट को सर्कुलर माना था। Then he propounded this theory. तब उन्होंने इस थ्योरी को बताया कि हमने
जो फोर्स चाहिए किसको, प्लैनेट को मोशन करने के लिए, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कहां से मिलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके किसके बीच में, सन और उस प्लैनेट के बीच में से। अब m तो आपको पता चल गया, v इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। Now see, this is sun, this is its circular orbit, like this. This is sun and this is the planet. This is the starting point of the planet. अब ये planet यहाँ पर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगा, जब वापस यहीं पे आया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, that is equal to the circumference of this circular orbit, that is equal to 2 pi r. Velocity is equal to distance upon time. डिस्टेंस यहां पर कितना प्लैनेट ने डिस्टेंस कवर किया, यहां से लेकर यहां तक, मींस एक सर्कमफेरेंस, दैट इज इक्वल टू 2 pi r अपॉन time, that is equal to t. Here we can see that 2 pi is constant. Constant मतलब इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, pi की वैल्यू 3.14 into 2, that is 6.28. 6.28 is a constant number ना, तो v is, हम लोग देख सकते हैं v is directly proportional to r upon t. Now squaring on both sides we get v square is directly proportional to r square upon t square. अब एक चीज हम लोग करेंगे जो कि आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब इसका ऊपर नीचे हम r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन r बाई r से मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसको हमने r क्यूब बनाने के लिए r बाई r से मल्टीप्लाई कर लिया, इस r का r स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया r क्यूब, r टू द पावर 3, और ये t स्क्वायर वैसे ही रखा था, r वैसे ही रखा था। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना था। वी हैव स्टडीड इन द केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन दैट दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, this value is constant, t square upon r cube और r square r cube upon t square, the value is constant. तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं v square is directly proportional to 1 upon r. जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा था f इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, तो यहाँ पर देखिए ये था फॉर्मूला किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो v स्क्वायर की हमें यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें v स्क्वायर पता चल गया कि v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, तो इस v स्क्वायर की जगह हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, v स्क्वायर की जगह 1 अपॉन r लिख सकते हैं। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये 1 अपॉन r तो पहले से ही था, इनटू दैट v स्क्वायर की जगह 1 अपॉन r पुट कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। यही चीज प्रूव करनी थी और यही चीज न्यूटन ने अपने ग्रेविटेशन के फॉर्मूले में दी है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, जिसमें कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूले में क्या है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो r, ये g क्या है, g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कब आया, जब हमने यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, तो
तो अगर हम यहाँ से जी हटाएं तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के, किसके, m1 m2 के प्रोडक्ट के, और फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r²। तो यही चीज न्यूटन ने अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कही है कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। तो यही चीज हमने अभी प्रूव करके आपको दिखाई, जिसको कि बोलते हैं न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर रूल। इनवर्स स्क्वायर रूल ये देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर भी किसका, r का। r वाज द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, जो दो बॉडी में थी जिनके बीच में कुछ डिस्टेंस था, दिस डिस्टेंस वाज r। तो आप लोग फिर से समझ लीजिए कि न्यूटन ने कहा था कि प्लैनेट्स जो हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं सन के अराउंड, और फोर्स जो उन्हें मिलता है वो चाहिए उनको सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि उनको कहां से मिलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। किसके किसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन और प्लैनेट के बीच में। तो मोशन करने के लिए प्लैनेट्स को एक फोर्स चाहिए होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका फॉर्मूला है mv²/r। यहां पर m है मास ऑफ द प्लैनेट, v है ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जो कि उन्होंने सर्कुलर मान लिया। v इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अभी मैंने आपको बताया कि एक प्लैनेट जब रिवॉल्व करेगा चारों ओर तो डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा, सर्कल की सर्कमफेरेंस के बराबर। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। यहां पर डिस्टेंस की जगह 2πr पुट किया, टाइम की जगह t पुट किया। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि ये वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट कब लगाते हैं, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं और इक्वल टू को लगाते हैं। तो हमने क्या किया कि इस कांस्टेंट को हटा दिया और प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा दिया। यहां पर जब प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाया तो ये किसके बराबर हो गया, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अपॉन t। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² अपॉन t²। अब v स्क्वायर को जब हमने r² अपॉन t² में किया, ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया r/r। v स्क्वायर बन गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² का मल्टीप्लाई r में, तो बन गया r³ t² वैसे रखा रहा, r 1/r वैसे रखा रहा। तो here we can see that v square is directly proportional to 1/r because this value is constant according to Kepler's third law of planetary motion। उसमें आप लोग देखेंगे इस रेशियो को कांस्टेंट माना जाता है। केपलर ने कहा है कि r³ या t² is directly proportional to r³। इन दोनों का जो रेशियो है that is constant। Now coming to here, v square is directly proportional to 1/r। क्यों? Because इतनी वैल्यू कांस्टेंट हो गई थी, तो कांस्टेंट को हमने यहां से नेग्लिजिबल मान लिया, दैट इज v स्क्वायर को हमने प्रोपोर्शनल मान लिया 1/r के, दैट इज v स्क्वायर इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। फोर्स का फॉर्मूला यहां से हमको पता था mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के पहले से ही, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v स्क्वायर के। और v स्क्वायर की वैल्यू हमें यहां पर पता चल गई, v स्क्वायर की वैल्यू यहां पर हमें पता चल गई कि v स्क्वायर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के। तो इस v स्क्वायर की वैल्यू हमने यहां पर फोर्स वाले फॉर्मूले में पुट कर दी। तो फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, v स्क्वायर की जगह हमने पुट किया 1/r। और पहले से ही ये देखिए फोर्स जो है 1/r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू था, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो ये 1/r तो चल ही रहा था, जब 1/r into 1/r हुआ तो हो गया 1/r²। यही हमको प्रूव करना है। दिस इज नोन एज न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर रूल।